Welcome back to your accountancy videos. As we were proceeding towards chapter 6, that is retirement of a partner, we have done preparation of capital account and balance sheet. Now the next topic that I need to discuss here is settlement of loan. Whenever a partner retires, the payment may be made to him immediately, it may be transferred to his loan account, and the loan may be settled in different installments. For that, look at question number 41 in your book. Rakesh retired from the firm. The amount due to him was 90,000. It was decided to pay the amount of rupees 30,000 immediately. The balance in three yearly installments. First two installments being 26,000. 26,000 की इंस्टॉलमेंट है, उसके अंदर इंटरेस्ट भी होगा ऑब्वियसली बिकॉज द अमाउंट पेएबल इज हैविंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. प्रिपेयर रिटायरिंग पार्टनर्स नेम इज राकेश. राकेश इज टू बी पेड अमाउंट rupees 30,000 immediately. First of all, I have prepared Rakesh's loan account, date particulars rupees. There's no need to prepare the ledger for you column. Loan is a liability as the amount of rupees 30,000 was paid on the date of retirement only. So the balance by Rakesh's कैपिटल अकाउंट से हमने 90,000 में से 30,000 तो इमीडिएटली पे कर दिया था, बाकी का 60,000 ट्रांसफर किया. ये हमारी फर्स्ट ईयर की बात हो रही है. अब फर्स्ट ईयर में हम लोन की बात करेंगे. क्वेश्चन के अंदर आपको डेट नहीं मेंशन, तो फर्स्ट ईयर में हमने ट्रांसफर किया. ये ईयर एंड है, फर्स्ट ईयर एंड पे हमें ऑब्वियसली 10% के हिसाब से इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है. 60,000 रुपीज के ऊपर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया बाय इंटरेस्ट अकाउंट. 60,000 के ऊपर हमें 10% के हिसाब से कैलकुलेट करना है. सो आई हैव कैलकुलेटेड 6,000 रुपीज. In the question, it is mentioned that the first installment is of 26,000. When we make the payment of first installment, I have written to bank account. This includes interest and the principal amount. If total amount is 26,000, 6,000 का इसके अंदर इंटरेस्ट है, तो बाकी की पेमेंट कितनी हुई? ऑब्वियसली 20,000. टोटल मेरा क्रेडिट साइड का था 66,000, जिसमें से 26 चले गए, तो मेरे पास ऑब्वियसली बैलेंस बच जाएगा. टू बैलेंस कैरिड डाउन 40,000. अगेन 66,000 कैरिड डाउन यहाँ पे आया है, उसी को ही ब्रॉट डाउन करेंगे. सेकेंड ईयर में मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000. अब मुझे इसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट. 10% है, डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं. 40,000 का 10% 4,000. नाउ द क्वेश्चन इज स्पेसिफाइंग दैट टू इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज 26,000 वर मेड. 4,000 रुपीज का मेरा इंटरेस्ट है, तो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट 22,000 पे किया होगा. अब मेरे पास अगेन बैलेंस करना है. दोनों साइड्स को बैलेंस करने के लिए हमने देखा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा था 44,000, डेबिट साइड पे है 26,000, तो मेरे पास यहां पे बचा टू बैलेंस कैरिड डाउन 18,000. थर्ड ईयर क्रॉस एंट्री बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000. अब थर्ड ईयर में मेरे लिए इंटरेस्ट कितना होगा? 18,000 का 10% 1,800. टोटल किया 19,800. क्वेश्चन में बोला है द पेमेंट इज टू बी मेड इन 3 इंस्टॉलमेंट. फर्स्ट एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट्स वी हैव मेड, सो लास्ट इंस्टॉलमेंट विल बी ऑफ द होल अमाउंट. To bank account 19,800.
both sides equal, double lines means account has been closed. This question was carrying unequal installment. Maybe some question will ask you to provide equal installment, so we will just divide the amount with the number of installments and then pay together with interest. Now beta, we will move towards the most important topic, that is adjustment of capital. When the retiring partner is to be paid through cash brought in by the remaining partners in a manner to make their capital proportionate to new profit sharing ratio. This particular statement is very important because according to that only we will make our capital adjustment. So read question number 52. XYZ, they are having profit sharing ratio 5:3:2. Different adjustments are given. Y retired on 1st April 2020. It was agreed that goodwill of the firm is 1,12,500. Y's share is to be adjusted into accounts of X and Z, who was going to share future profit sharing ratio. Fixed assets are to be appreciated by 20%. Fixed assets are to be appreciated. हमारे fixed assets की value है 1,87,500. Simply we will just calculate 20% of that और उसको लिख देंगे रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे. आफ्टर दैट स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू 75,000. टू या बाय वर्ड से हमारा चेंज हो जाता है. अब 75,000 तक हमारी वैल्यू रिड्यूस हो गई है. अर्लियर इट वाज 82,500, मतलब 7,500 से वैल्यू कम हुई है, जिसको रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे लिखेंगे. एंड द रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी पुट इन न्यू बैलेंस शीट. Y to be paid amount brought in by X and Z so that their capital is proportionate to new profit sharing ratio. First we will do our adjustments and hidden adjustment. For hidden adjustment we have workman compensation reserve here because there is no claim. The complete amount we will divide among old partners and old ratio. Employees provident fund we won't distribute. It will be shown in the balance sheet at the same value because it is an outside liability. So we are required to prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet. Revaluation account, stock की वैल्यू कम हो रही है. to या by word is optional. I told you again and again. Stock 7,500 से कम हुई है. There was appreciation in value of fixed assets. Fixed assets की वैल्यू 20% हुई थी. हमने 20% निकाला 37,500. There is no other adjustment. बैलेंस किया अकाउंट्स को 37500 और इस साइड है 7,500, so balance is 30,000. This 30,000 will be obviously the gain which is to be transferred to partners capital account. To gain transferred, always the gain is transferred among the old partners in old ratio which is given in the question 5:3:2. 5/10, 3/10 and 2/10. हमने डिवाइड कर दिया. 15,000, 9,000 and 6,000. Well, preparing partners capital account, first is their balance. Opening balance is written by the word brought down. Opening balances are given in the question. 1,65,000, 84,000 and 66,000. क्रॉस एंट्री होती है. हम लिखेंगे बाय revaluation account ब्रैकेट में profit 15,000, 9,000 and 6,000. After that workman compensation reserve is there which is to be distributed completely because there is no claim. workman compensation reserve का amount है 22,500. 5:3:2 की रेशियो में अगेन डिवाइड कर देंगे. 1,1,250, 6,750 and 4,500. After that, goodwill is to be distributed. We have to make an adjustment entry for goodwill, that is gaining partners capital account debit to sacrificing partner. The question specifies old ratio XYZ 5:3:2, new ratio X and Z 3:2. gaining ratio का हमें फॉर्मूला पता है. new ratio minus old ratio. new is 3/5 and 2/5. उसमें से old share 5/10 and 2/10 डिडक्ट किया. हमारी gaining ratio आ गई 1:2.
फर्म की गुडविल की वैल्यू है 1,12,500, जिसके अंदर y का शेयर है 3/10। ऑब्वियसली फर्म में से मल्टीप्लाई करेंगे y का शेयर, y गुडविल इज 33,750। दिस इज टू बी डिवाइडेड अमंग दी sacrificing partners, gaining partners, that is x and z, 1:2, 1/3 and 2/3, 11250, 22500। x और z के कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे और y का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। बाय x कैपिटल बाय z कैपिटल हमने अमाउंट दे दिया 11250 एंड 22,500। इसी अमाउंट से x और z को हमें डेबिट भी करना है और नाम क्या आता है अपोजिट पार्टी का, तो हम लिखेंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट। आफ्टर दैट हमें एडजस्टमेंट करनी है। कौन सी एडजस्टमेंट? कैपिटल एडजस्टमेंट। बेटा नाउ लुक एट द एडजस्टमेंट वेरी वेरी केयरफुली। जैसे हम सभी क्वेश्चंस में करते हैं, एक्चुअल कैरेट डाउन बैलेंस निकालते हैं, चाहे वो विद एडजस्टमेंट हो या विदाउट एडजस्टमेंट। फॉर विद एडजस्टमेंट ऑल्सो यू जस्ट कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल योर एक्चुअल कैरेट डाउन फिगर्स। कैसे निकालते हैं? क्रेडिट साइड की आइटम्स टोटल की, उसमें से डेबिट साइड की माइनस की, और जो भी हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स थे एक्स और जेड, उनके हमने बैलेंसेस निकाल लिए 1,80,000 एंड 54,000। ये हमारे हैं एक्चुअल बैलेंसेस, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट करके एक्स और जेड के। क्वेश्चन में बोला है रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू कैश ब्रॉट इन बाय द रिमेनिंग पार्टनर। मतलब रिमेनिंग पार्टनर एक्स और जेड को पैसा लेकर आना है और इस तरीके से पेमेंट करनी है कि उनकी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शनेट हो जाए। अब हमने देखा कि हमें रिटायरिंग पार्टनर को देना कितना था। रिटायरिंग पार्टनर को कैसे पता लगेगा? उसकी क्रेडिट साइड के आइटम्स को सबको टोटल करो। इफ डेबिट साइड का कुछ होता तो हम माइनस करते। वाई की डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है, हमने क्रेडिट साइड की सारे आइटम्स को टोटल किया, आ गया 1,33,500। ये अमाउंट है मेरा रिमेनिंग पार्टनर्स का और ये अमाउंट है मेरा रिटायरिंग पार्टनर का। जब मैंने अपनी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट बनाना है, मुझे ये पता होना चाहिए कि ये पार्टनर अगर चला भी जाए तो मेरी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। जो रिटायरिंग पार्टनर की कैरेट डाउन बैलेंस है उसमें हमने ऐड कर दिया अमाउंट कि मुझे रिटायरिंग पार्टनर को कितना देना है। रिमेनिंग पार्टनर्स प्लस रिटायरिंग पार्टनर्स करने के बाद मेरे पास आ रहा है 3,67,500। अगर मैं इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दूं तो मेरी कैपिटल इस तरीके की हो जाएगी कि एक्स और जेड को कुछ पैसा लाना पड़ेगा वाई को पेमेंट करने के लिए। तो हमने 3,67,500 को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में डिवाइड किया, दैट इज 3/5 एंड 2/5। 3/5 एंड 2/5 करने के बाद जो मेरी कैपिटल आई वो होगी मेरी शुड बी फिगर्स। ये मेरी शुड बी कैपिटल है। हमेशा एडजस्टमेंट वाले चीजों में एक्चुअल कैपिटल को हम कैरेट डाउन नहीं दिखाते, हम शुड बी फिगर्स को दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारी शुड बी फिगर क्या है? 2,20,500 एंड 1,47,500। क्या मेरे एक्चुअल अमाउंट इतने ही थे? नहीं, मेरे एक्चुअल अमाउंट थे 1,80,000 एंड 54,000। शुड बी अमाउंट है मतलब 2,20,500 एंड 1,47,000। ये अमाउंट्स ऑब्वियसली ज्यादा हैं, तो एक्स और जेड को कुछ पैसा लाना पड़ेगा ताकि मेरी कैपिटल इतनी बन जाए। जब मैं कैपिटल लाती हूं ऑब्वियसली मेरी एंट्री किस साइड पे आती है? क्रेडिट साइड पे। तो मैंने लिखा अमाउंट टू बी ब्रॉट। एक्स जो है वो अपने शुड बी फिगर्स में से अगर मैं एक्चुअल फिगर को माइनस करूं तो 40,500 लेकर आएगा और जो जेड है वो 93,000 लेकर आएगा। ऑब्वियसली मेरे बैंक बैलेंस पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बैंक बैलेंस का मैं अकाउंट बना रही हूँ। ओपनिंग बैलेंस था मेरे पास 15,000। एक्स इतना पैसा लेकर आएगा, जेड इतना पैसा लेकर आएगा, तब जाकर मैं वाई को पेमेंट कर पाऊंगी। कितनी? जो मेरा वाई का बैलेंस था अमाउंट पेबल में 1,33,500। तो हमारा यही बन गया हमारा
बैलेंस कैरिड डाउन, जिसको हम अपनी बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस के सामने दिखाएंगे। ये हमारी सारी कैपिटल एडजस्टमेंट थी। इस कैपिटल एडजस्टमेंट के हिसाब से ही आपको अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा करना है। अब हमें पता चल गया एक्स और जेड के बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए हमें उनकी क्रेडिट साइड पे एंट्री करनी है। बैंक में वो पैसा और लेकर आ रहे हैं, तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम उनकी क्रेडिट साइड पे लिखा बाय बैंक अकाउंट। एक्स कितना लेकर आ रहा था 40,500, जेड कितना लेकर आ रहा था 93,000। इन्हीं अमाउंट्स को जब मैं टोटल कर लूंगी तब मेरे को वही कैरेट डाउन फिगर्स मिलेंगे जो मैंने शुड बी फिगर्स कैलकुलेट किए थे अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग। टोटल किया, टोटल करने पे आ रहा है हमारे पास 2,31,750 एंड 1,33,500 और 1,69,500। ऑब्वियसली टोटल both sides will be same। अब मुझे पेमेंट करनी है y को, जो कि मेरा रिटायरिंग पार्टनर है। पेमेंट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से जितना भी टोटल अमाउंट था 1,33,500 मैंने पूरी की पूरी पेमेंट कर दी। बाकी एक्स और जेड का तो बैलेंस बचेगा, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे बैलेंस कैरेट डाउन। ये उनके शुड बी फिगर्स होंगे जो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, 2,20,500 और 1,47,000। यही बैलेंसेस अब हम बैलेंस शीट में भी शो करेंगे। बैलेंस शीट बनाते टाइम हमने लिखा कैपिटल एक्स एंड जेड। कैपिटल के बैलेंसेस लिख दिए। एक्स का बैलेंस था 2,20,500। इनर कॉलम में लिख के टोटल करके लिखोगे तब भी ठीक है, ऐसे लिख दोगे तब भी ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, हमने सेम अमाउंट लिख दिया। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू, वी हैव रिटन द सेम अमाउंट। इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट नहीं थी। हम अपनी लायबिलिटी साइड को टोटल करेंगे। टोटल करने पे आ रहा है 4,12,500। असेट साइड पे आए, बैंक में कौन सा बैलेंस बचेगा, वही जो हमने कैलकुलेट किया था 15,000 का बैलेंस। उसके बाद हमारे फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में एप्रिसिएशन हुआ था 20% का। हमने रीवैल्यूएशन में जो एप्रिसिएशन दिखाया था वो एड ऑन करके फाइनल फिगर दिखा दिया। स्टॉक की वैल्यू अब कम होकर हो गई थी 75,000, वो लिख दिया। डेटर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया था, सेम अमाउंट लिख दिया। अगेन टोटल किया 4,12,500, both sides equal, question is done. This was when the amount is to be brought by the remaining partners to make capital proportionate. बेटा नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट है जिसके अंदर व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू कैश ब्रॉट इन बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू न्यू रेशो एंड, जो अभी तक हमने किया था उसी के अंदर एक नया पॉइंट ऐड हो रहा है। तो you'll have a link with these two questions and adjustment leaving a desired balance. For that look at question number 54. Hidden adjustment में हमारे पास जनरल रिजर्व गिवन है, गुडविल इज ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट। हमें इन दोनों हिडन एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखना है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है वाई रिटायर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रेज्ड बाय 1,000। हमें रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे लिखना है। स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 10%। अगेन रिवैल्यूएशन डेबिट साइड, क्योंकि ये लॉसेज हैं हमारे। देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ 1,100 विच इज टू बी प्रोवाइडेड। अगेन रिवैल्यूएशन डेबिट साइड, और ये वाले लॉस या प्रोविजन को बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे लायबिलिटी साइड पे। क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक बाय 6,000 मीन्स क्रेडिटर्स को अब आपने पेमेंट नहीं करनी।
आपने ध्यान दिया यहाँ पे न्यू रेशो क्वेश्चन के अंदर मेंशन ही नहीं है, तो जो हमारी ओल्ड रेशो है उसी को ही हम हाइड करके न्यू रेशो निकालेंगे और वही न्यू रेशो हमारी गेनिंग रेशो होगी, क्योंकि हमें गुडविल के लिए एंट्री जब करनी पड़ती है तो हम करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। बिफोर दैट वी विल प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1000 का, क्रेडिटर्स रिटर्न बैक थे 6000 के, स्टॉक और फर्नीचर को हम डेप्रिसिएट कर रहे हैं, स्टॉक को करना है 10%, तो आ गया 1800 और फर्नीचर को करना है 5%। देयर वाज अ प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग क्लेम which is our liability 1100। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। हम टोटल करेंगे दोनों साइड्स 6000 रुपीज और इस साइड का टोटल किया हमने 6000 में से माइनस किया 1000, 1800, 1500 एंड 1100। मेरे पास बच रहा है 5400 माइनस करने के बाद 600 रुपीज। ये 600 मेरे लिए क्या है? गेन ट्रांसफर्ड। गेन हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के बीच में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ABC प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1, मतलब 300, 200 एंड 100। ये मेरी क्रॉस एंट्री जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। और उसके बाद हमने गुडविल की भी एडजस्टमेंट करनी है अपने वर्किंग नोट्स में। ओल्ड रेशो थी ABC की 3:1, B रिटायर्स, B का शेयर हाइड किया, बचा 3:1, यही हो गई हमारी न्यू रेशो। B's गुडविल, फर्म की गुडविल गिवन थी 22,000 इंटू 2/6 किया 7333। अब इसको 3:1 में यानी 3/4 एंड 1/4 में डिवाइड करेंगे 5500 एंड 1833। ये गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की एंट्री अगेन जाएगी उनके कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस ABC के ट्रांसफर किए 40,000, 40,000 एंड 30,000। उसके बाद हमने जो गुडविल के लिए एंट्री की थी A एंड C's कैपिटल अकाउंट डेबिट और जो रिटायरिंग पार्टनर है B उसको दे देंगे। तो हमने लिखा बाय A's कैपिटल अकाउंट बाय C's कैपिटल अकाउंट। B को मिल रहा है तो B के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एंट्री चली गई और A और C से लिया जा रहा है तो इनके डेबिट साइड पे एंट्री चली गई। अपोजिट पार्टी का नाम आता है, हमने लिखा B's कैपिटल अकाउंट। आपको हिडन एडजस्टमेंट मैंने क्या बताई थी इसके अंदर? जर्नल रिजर्व है। जर्नल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो के बीच में डिवाइड होगा। 12,000 है, 3:1 की हमारी रेशो है, हमने डिवाइड कर दिया 6,000, 4,000 एंड 2,000। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर किया 300, 200 and 100. Goodwill was already appearing in the बैलेंस शीट, उसको राइट ऑफ करेंगे। गुडविल का अमाउंट है 10,000, 3:1 की रेशो में अगेन हमें डिवाइड करना है 5,000, 1677। ये हमारी अभी तक की नॉर्मल एडजस्टमेंट एंट्रीज थी। अब बात आती है हमारी एडजस्टमेंट कैपिटल की जो हमें करनी है। हमें क्वेश्चन में बोला है B is to be paid with cash brought in by A and C in a manner to make their capital proportionate, leaving a balance of 10,000। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपने बैलेंसेस निकालेंगे जो हमें नॉर्मल क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करके आता है, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल कैरेट डाउन फिगर्स। वर्किंग नोट्स में कर लेंगे। कैसे करते हैं? A का 40,000 है, 6,000 है और 300 है, माइनस डेबिट साइड में क्या है? 5500 और 5000।
तो मेरे पास बैलेंस आया 35,800। सेम वेज मैंने सी का भी किया। सी की क्रेडिट साइड पे था 30,000, 2,000 एंड 100। डेबिट साइड पे था 1833, 1677 और इनको माइनस करने के बाद मेरे पास बच गया 28,600। ये था एक्चुअल कैरी डाउन बैलेंस ऑफ ए एंड सी। अब मैंने निकाल लिया अमाउंट पेएबल टू बी। अमाउंट पेएबल टू बी करने के लिए 40,000 प्लस 5,500 प्लस 1833 प्लस 4,000 प्लस 200 माइनस जो इसके डेबिट साइड पे था 3333। तो मेरे पास अगेन अमाउंट आ गया 48,200। अब क्वेश्चन के अंदर हमने जैसे पहले वाले केस में किया था सेम एज इट इज हमने अमाउंट्स निकाल लिए जो इनके कैरिड डाउन फिगर्स होते हैं 35,800, 28,600 और 48,200। ये अमाउंट हमें पिछले वाले केस में ऐड अप करके उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करना था। इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज है कि हमें मिनिमम बैलेंस जो है 10,000 का हमेशा मेंटेन करना है। ऑलरेडी हमारे पास कितना बैलेंस है क्वेश्चन के अंदर कैश इन हैंड 18,000 का। हमें अमाउंट पे कितना करना है 48,200। 48,200 का मुझे अमाउंट पे करना है, जिसके साथ साथ मुझे ये पता है कि मुझे 10,000 का तो मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करना है। मतलब मेरे पास अवेलेबल कैश कितना है? अवेलेबल कैश है मेरे पास एक्स्ट्रा वाला 18,000 जो है, जिसमें से 10,000 तो मुझे ऑलरेडी मेंटेन रखना है, तो बाकी का 8,000 का मेरे पास बैलेंस है जिसको मैं यूज कर सकती हूँ फॉर द पेमेंट पर्पज। वही 8,000 का अगर मैं अमाउंट इसमें से माइनस कर दूं, मैंने लिखा अमाउंट अवेलेबल टू बी यूज्ड। देखा हमने अभी तक कुछ भी चेंज नहीं है क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ चेंज क्या आ रहा है कि मेरे पास 18,000 का बैलेंस था कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस शीट में। मुझे बताया क्वेश्चन में मुझे 10,000 हमेशा अपने पास रखना है। मतलब मेरे पास 8,000 का बैलेंस है जिसको मैं यूज कर सकती हूँ, जो कि मुझे और लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे उस अमाउंट को माइनस कर दिया, माइनस अमाउंट अवेलेबल टू बी यूज्ड 8,000। 8,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरी टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड, जो ऐसे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, इसको इसको और इसको ऐड करके, अब यहाँ पे एक ऐड पॉइंट क्या हुआ कि मैंने अवेलेबल जो कैश था उसको माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद मेरे पास आ रहा है 1,04,600। 1,04,600 ये मेरे पास अमाउंट है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन के अंदर हमने निकाली थी हाइड करके, दैट वाज 3:1। मुझे बस अब इस अमाउंट को 3:1 की रेशो में डिवाइड करना है। 3:1 की रेशो में डिवाइड करूंगी 3/4 78450 और 1/4 करूंगी मैं अगर, तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगा 26,150। ये कौन से मेरे अमाउंट हैं? अब ये मेरे शुड बी फिगर्स हैं। शुड बी फिगर्स को हम हमेशा किन से कंपेयर करते हैं? एक्चुअल फिगर से। यहाँ देखो 78,450 होना चाहिए, है कितना? 35,800। मतलब मुझे और पैसा लाना पड़ेगा। लाना पड़ेगा तो एंट्री किस साइड पे जाएगी? क्रेडिट साइड पे। अब दूसरे को देखते हैं हम, सी को। सी के केस में होना चाहिए 26,150, है कितना? 28,600। मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा है वो तो ये विड्रॉ कर सकता है। अगर विड्रॉ करते हैं तो एंट्री कहाँ पे जाती है? डेबिट साइड पे। तो मैंने यहाँ पे बस अब अपने वर्किंग नोट्स में निकाला अमाउंट टू बी ब्रॉट बाय एक्स को ज्यादा लेकर आना पड़ेगा क्योंकि उसका शुड बी फिगर है 78,450 और उसके पास अवेलेबल था ओनली 35,800, तो वो एक्स्ट्रा पैसा लेकर आएगा
42,650 का। ये अमाउंट, दिस इज कैश ब्रॉट इन पार्टनर ए, XYZ नहीं है इसमें, ABC है, तो द अमाउंट ब्रॉट इन बाय ए। उसके बाद जो दूसरा पार्टनर था C, वो तो विड्रॉ करेगा, अमाउंट विड्रॉन बाय C। विड्रॉ क्यों करेगा? क्योंकि इसका अमाउंट जो था 26,150 ये होना चाहिए, ऑलरेडी कितना है 28,600। शुड बी में से एक्चुअल माइनस, शुड बी में से एक्चुअल माइनस, इसका पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये अमाउंट और लेकर आएगा, इसका नेगेटिव आ रहा है मतलब ये अमाउंट विड्रॉ कर लेगा। जब और लेकर आएगा तो एंट्री क्रेडिट साइड पे जाएगी, जब विड्रॉ करेगा तो एंट्री डेबिट साइड पे जाएगी। बस इतना ही लॉजिक हमने याद रखना है। उसके बाद हमें कैश अकाउंट भी बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता, बट कैश का बैलेंस तो हम दिखाते ही हैं हमेशा अपनी बैलेंस शीट में। इसका बैलेंस बनाते टाइम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस था 18,000। बाय बैलेंस कैरेड डाउन, मुझे मिनिमम रखना कितना था 10,000। टू एज कैपिटल, ए और पैसा लेकर आ रहा है कितना 42,650। सी जो है वो विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ आएगा बाय सीज कैपिटल 2450। और मुझे किसको पेमेंट करनी है? बी को, जो रिटायरिंग पार्टनर है। कितना? जो हमने अमाउंट पेबल निकाला था, अमाउंट पेबल इसका निकाला था 48,200। दोनों साइड्स को टोटल करेंगे, बोथ साइड्स विल बी इक्वल, क्योंकि हमें मिनिमम बैलेंस ऑलरेडी 10,000 पता था। इसी के अकॉर्डिंग ही हमने अपनी सारी एंट्रीज की। हमें पता था हमारे पास 10,000 नहीं है यूज करने के लिए कितना था? सिर्फ 8,000। तो हमारी एंट्री भी उसी के अकॉर्डिंग आई थी। अब हम प्रिपेयर कर लेंगे अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ए एंड सी के हमें कौन से फिगर्स लिखने हैं? जो कैरेट डाउन फिगर्स आएंगे। क्लेम फॉर डैमेजेस 1100 जो क्वेश्चन में गिवन था। क्रेडिटर्स 30,000 में से 6,000 वापस ले लिए, बच्चे 24,000। हमारे शुड बी फिगर्स ए और सी के हमने कितने निकाले थे? 78,450 एंड 26,150। इसका टोटल यही था 1,04,600। टोटल करेंगे अपनी बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट का टोटल करने के बाद आ जाएगा 1,45,700। इस साइड पे आए, स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यू डेप्रिसिएट हुई थी, हमने लिख ली। डेटर्स में से अब प्रोविजन बढ़ गया था 1,000 से, पहले 3,000 का था तो बढ़ के 4,000 हो गया, और हमने माइनस करके आउटर कॉलम में वैल्यू दिखा दी। मशीनरी की वैल्यू एज इट इज, नो चेंज। कैश का बैलेंस कितना निकाला था? 10,000। बैलेंस शीट हमारी सेम बैलेंस शो करेगी। हमें अपने कैपिटल अकाउंट की भी एंट्री जो रहती है वो क्लोज करनी थी। हमने देखा था कि ए जो है वो पैसा लेकर आ रहा था, तो हम क्रेडिट साइड पे लिख दिया 42,650। सी जो है वो विड्रॉ कर रहा था, तो उसकी डेबिट साइड पे लिख दिया 2450। हमें पेमेंट किसको करनी थी? रिटायरिंग पार्टनर को। रिटायरिंग पार्टनर बी है, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करनी थी 48,200। बाकी के बैलेंस हमारे बैलेंस कैरेट डाउन बच जाएंगे ए और सी के, जो कि हमारे शुड बी फिगर्स हैं। शुड बी फिगर्स थे 78,450 एंड 26,150। हम दोनों साइड्स का इक्वल करेंगे, दोनों साइड्स ऑब्वियसली इक्वल आएंगी क्योंकि कैरेट डाउन फिगर्स हमारे उसी हिसाब से निकले थे। बस हमें टोटल करके अमाउंट्स लिखने हैं। ये आपका पहले वाले केस का ही एक्सटेंशन है बेटा। ये एक्सटेंशन कैसे है? क्योंकि इसके अंदर हमने एक मिनिमम कैश बैलेंस वाली एडजस्टमेंट और पढ़ी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बस हमने टोटल करके लिखना है। दोनों साइड्स को टोटल किया, अमाउंट्स लिख दिए 88,950, 51,533, 321,000। सेम बैलेंसेस आ गए हमारे क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल। कैरेट डाउन बैलेंसेस हम लिख चुके थे, जो कि हमें बैलेंस शीट में भी शो करने थे। बैलेंस शीट में शो किए। क्लेम फॉर डैमेजेस, क्रेडिटर्स टोटल किया 1,45,700।
दिस वॉज वन ऑफ योर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपका फॉरेन 2003 मॉडिफाइड इसके अंदर लिखा हुआ है. एंड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन कम फ्रॉम रिटायरमेंट फ्रॉम 8 marks questions point of view. So that's it for today's video. In my further video, I'll discuss other cases of capital adjustment. You need to practice capital adjustment again and again, because this is the only topic where you'll find little complication. Otherwise, the topic's very smooth, comparatively very easy than admission. Thank you so much.